Hello friends, Jai Swaminarayan. So now in electrical drive subject we have already started with introduction of the subject and basic funda of the DC motor. Okay, so now uh, today in this session we will move in the same direction with a DC motor. Okay, so last session में हमने देखा था that is the types of DC motor and the characteristic of DC motor. Then we have already defined the back EMF equations and we have already seen the characteristic of DC motor, different DC motor. Okay, so that we have already gone through that. Okay, so I think this thing is done. Okay, so we have started with a DC motor principle, basic funda of DC motor. Then we have defined the back EMF equation EB, and that equation is this EB back EMF equation, this V equal to EB plus IRA. Then we have defined the torque equation for the DC motor for a series, shunt and compound. Okay, so torque equation. Then we have already defined the types of DC motor. Okay, and the characteristic of DC motor. Okay, so this thing is done in last session. Okay, so these are the torque equation for the DC motor. Okay, in the form of flux and current. Okay, so okay, so now जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन दी स्पीड कंट्रोल ऑफ अ डीसी मोटर एंड वी विल आल्सो सी सम एग्जांपल ऑफ डीसी मोटर की भी किस तरह डीसी मोटर वर्क कर रहा है. ओके, सो नाउ speed control of DC motor. So we have a equation of speed, DC motor speed equation, n equal to EB upon phi, n proportional to EB upon phi, where EB equal to back EMF, or we can say n equal to V minus IARA upon K phi. Okay, so this is the standard speed equation of DC motor. Okay, so from this equation we can say कि भाई अगर मुझे स्पीड चेंज करनी है डीसी मोटर की तो कौन से पैरामीटर में चेंज करूँगा तो स्पीड चेंज होगी. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि अगर मैं आर्मेचर करंट चेंज करता हूँ सो आई कैन चेंज द स्पीड. सेम वे अगर मैं वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ सप्लाई वोल्टेज सो स्पीड चेंज हो सकती है. एंड अगर मैं फ्लक्स चेंज कर सकता हूँ दैट मीन्स फील्ड अगर मैं चेंज करता हूँ तो ऑब्वियस स्पीड चेंज होगी. सो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन we can define the method of speed control of DC motor. Okay, so now we have basically three method: resistance variation in the armature circuit. Okay, so this method is known as a armature resistance control or sometimes is known as a rheostat control. Okay, then अगर मैं फील्ड से कंट्रोल कर रहा हूँ वेरिएशन ऑफ द फील्ड, सो दैट मेथड इज नोन एज अ फील्ड कंट्रोल और फ्लक्स कंट्रोल. एंड अगर मैं वोल्टेज कंट्रोल कर रहा हूँ सो दैट मेथड इज नोन एज अ आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, बिकॉज वोल्टेज नॉर्मली हम आर्मेचर पे दे रहे हैं. सो दिस थ्री आर द मेथड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर. ओके, सो नाउ इन रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड और आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, सो क्या कर रहे हैं हम बेसिकली इन आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल वी विल पुट वन रजिस्टर इन सीरीज विद द आर्मेचर. ओके, so this is your shunt motor and this is your series motor. okay, तो आर्मेचर जहाँ है उसके सीरीज़ में मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पुट कर रहा हूँ. सेम वे अगर ये सीरीज़ मोटर है तो आर्मेचर की सीरीज़ में ही. ओके, ओके, सो आई हैव पुट हियर वेरिएबल रजिस्टर, हियर आई हैव पुट वेरिएबल रजिस्टर. अगर मैं ये वोल्टेज वेरी कर रहा हूँ आर्मेचर, सो फाइनली आर्मेचर रेजिस्टेंस वेरी होगा, यहाँ भी आर्मेचर रेजिस्टेंस ही वेरी होगा बिकॉज सीरीज़ में है. ओके, सो जैसे जैसे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा ऑब्वियस है उसके अक्रॉस में ड्रॉप बढ़ेगा और फाइनली वी कैन से कि स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ बढ़ा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये टर्म बढ़ जाएगा तो ओवरऑल ये डिफरेंस कम हो जाएगा तो फाइनली स्पीड भी कम हो जाएगा. ओके, सो फ्रॉम दैट वी कैन से. ओके, so this is a basic armature voltage armature resistance control. okay, now but this method having some drawback कि भी basically इसमें हम करवा क्या रहे हैं तो ड्रॉप ही करवा रहे हैं. so that is a basic main drawback of this method कि भाई हम ड्रॉप करा रहे हैं मीन्स लॉस करा रहे हैं. so energy loss is more.
So in the external resistance Re, large amount of power is wasted. So we can say it's the biggest drawback of this method. Okay, and पावर लॉस्ट हो रहा है, सो हम ज़्यादा रेटिंग की जो मोटर है उस पर ये मैथडोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते. ओके, सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आर द स्पीड रिड्यूस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट बट विद ए वेरिएबल. ओके, एंड दिस मैथड इज नॉट यूज इज ओनली यूज फॉर द स्मॉल स्मॉल रेटेड मोटर. लार्ज मोटर के लिए हम ये मैथडोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगा. ओके, so it is a simple armature speed control method, armature resistance control. Okay, now next that is the field control. So as name say field control, so field के across में हम क्या कर रहे हैं, resistance लगा रहे हैं across में यहाँ. so यहाँ basically armature के across में आएगा but series with the field. okay, so flux को हम control कर रहे हैं, basically current को ही control कर रहे हैं. same way here in series motor में फील्ड कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो सीरीज वाइंडिंग है उसके अक्रॉस में हम रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टर पुट करेंगे. ओके, सो जैसे ही वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वेरी होगा ऑब्वियस है करंट वेरी होगा, फाइनली वी कैन से फ्लक्स वेरी होगा. ओके, तो जैसे फ्लक्स की वैल्यू कम होगी स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी बिकॉज वी हैव दिस इक्वेशन. अगर मैं फ्लक्स बढ़ाऊंगा तो फाइनली स्पीड रिड्यूस होगी, अगर मैं फ्लक्स कम करूंगा तो स्पीड बढ़ेगा. ओके, सो दिस इज अ वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स और फ्लक्स कंट्रोल. ओके, दिस मेथड इज समटाइम ऑल्सो नोन एज अ डिवाइडर मेथड और टैप फील्ड कंट्रोल मेथड. ओके, then we have a voltage control method, armature voltage control method. So as name say armature voltage control, basically हम कर क्या रहे कि भाई सप्लाई जो दे रहे उसको हम वेरी करेंगे तो फाइनली ऑटोमेटिकली स्पीड वेरी हो गई. जो इक्वेशंस हमारे पास है उस हिसाब से अगर मैं वोल्टेज वेरी करूँगा तो फाइनली स्पीड वेरी होगी. अब वोल्टेज वी कैन डायरेक्टली कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज है तो सीरीज में अगर मैं वेरिएक रख दूँ, ओके, सो वेरिएबल रजिस्टर रख दूँ तो आई कैन वेरी दी वोल्टेज. ओके, एंड अनदर मेथड इज दैट इज़ अ वार्ड लियोनार्ड सिस्टम. दूसरी जो मेथड है कि वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए तो वो है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम. और वार्ड लियोनार्ड सिस्टम में बेसिकली है क्या, दिस इज़ माई डीसी मोटर, उसकी स्पीड मुझे कंट्रोल करनी है तो उसके लिए ये सेटअप मुझे चाहिए वार्ड लियोनार्ड मैथडोलॉजी में. तो ये क्या है, डीसी जनरेटर है. डीसी जनरेटर दिया हुआ है सप्लाई देने के लिए डीसी मोटर को, और डीसी जनरेटर को कपल किया हुआ है मोटर से एंड दैट इज एसी मोटर. ओके, नाउ डीसी जनरेटर है तो उसका भी फील्ड होगा. ओके, एंड डीसी मोटर है तो उसमें भी फील्ड होगा. ओके, सो अगर मैं यहाँ डीसी जनरेटर को स्पीड वेरी करूँगा तो फाइनली आई कैन वेरी दी स्पीड ऑफ डीसी मोटर. अब इसकी स्पीड वेरी करने के लिए मुझे यहाँ सप्लाई चेंज करूँगा, 3 फेज सप्लाई, तो डीसी मोटर की स्पीड वेरी हो जाएगी. इसकी स्पीड वेरी होगी तो फाइनली ये कपल्ड है डीसी जनरेटर के साथ तो इसकी स्पीड वेरी होगी, तो फाइनली डीसी मोटर की स्पीड वेरी हो जाएगी. ओके, सो अगर मैं यहाँ सप्लाई चेंज कर रहा हूँ तो फाइनली यहाँ स्पीड वेरी हो रही है. ओके, सो दिस इज़ अ वार्ड लियोनार्ड सिस्टम. ओके, नाउ इसका एडवांटेज ये है कि दिस ड्राइव हैव अ स्मूथ स्पीड कंट्रोल. ओके, एंड वाइड रेंज में हम स्पीड कंट्रोल इसमें कर सकते हैं. एंड अनदर एडवांटेज इज इट हैज़ इनहंट जनरेटिव ब्रेकिंग कैपेसिटी. ब्रेकिंग कैपेसिटी इसमें इस कंट्रोल सिस्टम में अच्छी है. दैट इज एडवांटेज ऑफ द वार्ड लियोनार्ड सिस्टम्स. ओके, बट इसके ड्रॉबैक भी है कि नंबर्स ऑफ यहाँ देखो ये इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें जनरेटर भी चाहिए, मोटर भी चाहिए, तो ऑब्वियस है कि इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी. लार्ज साइज एरिया चाहिए सारे इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए. ओके, तो ओवरऑल एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी. सो दिस आर द सम ड्रॉबैक ऑफ द वार्ड लियोनार्ड सिस्टम. ओके, सो दिस 3 आर द मेथड, स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ द डीसी मोटर. Okay, first is a armature resistance control, another that is a field control, and then we have a armature voltage control. Okay, now we will see some example of the DC motor. Okay, so here example is be like this. A 250 volt DC shunt motor takes a line current of 20 ampere
resistance of shunt field winding is 200 ohm and the resistance of armature is 0.3 ohm. Find the armature current and back EMF. ओके, आपको दिया क्या है, शंट मोटर दी है, तो हियर वी हैव अ शंट मोटर. देन लोड लाइन करंट इज गिवन, IL इज गिवन, सो IL इज गिवन 20 एम्पियर. वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट. देन 200 दैट इज RS शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है. ओके, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर्मेचर करंट. सो आर्मेचर करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, आर्मेचर करंट ये रहा, तो आर्मेचर करंट क्या मिलेगा, IL माइनस ISH. IL माइनस ISH करूँगा तो मुझे आर्मेचर करंट मिलेगा, तो IA इक्वल टू IL माइनस ISH. अब IL दिया हुआ है दैट इज अ 20 एम्पियर. ओके, बट ISH नहीं दिया हुआ है, तो ISH हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो ISH करेंगे V अपॉन RSH. तो वोल्टेज दिया हुआ है एंड शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इस पे मुझे ISH मिल जाएगा 250 अपॉन 200 दैट इज 1.25 एम्पियर. ओके, तो दोनों मिल गए, IL भी है एंड ISH, तो IL माइनस ISH, तो एंड फाइनली आई कैन फाइंड दी आर्मेचर करंट. तो आर्मेचर करंट मुझे मिल गया. अब क्या बोला हुआ है, बैक EMF फाइंड आउट करने के लिए. तो बैक EMF का इक्वेशन क्या है, तो वी हैव अ स्टैंडर्ड इक्वेशन V इक्वल टू EB प्लस IR है. सो इससे क्या इक्वेशन बनेगा, EB इक्वल टू V माइनस IR है. मेरे पास वोल्टेज भी है, आर्मेचर करंट भी है एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस भी है. तो 250 18.75 इंटू 0.3 आर्मेचर रेजिस्टेंस. सो फाइनली आई गॉट द बैक EMF 244.37 वोल्ट. ओके, सो इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, सो ये इक्वेशन सारे आपको याद रखने हैं कि भाई शंट मोटर है तो करंट का इक्वेशंस क्या होगा. ओके, अब बैक EMF का इक्वेशन क्या है वो आपको याद रखना है. ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. ओके, सो हियर अनदर एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल सेज 230 वोल्ट मोटर हैज़ अ आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस, मीन्स आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट. नाउ इफ द फुल लोड आर्मेचर करंट इज 30 एम्पियर, फुल लोड आर्मेचर करंट दिया हुआ है एंड नो लोड आर्मेचर करंट, मीन्स दो कंडीशन दी हुई है, फुल लोड एंड नो लोड. तो दोनों कंडीशन में आर्मेचर करंट दिया है, फुल लोड में दिया हुआ है 30 एम्पियर एंड नो लोड में आर्मेचर करंट क्या दिया हुआ है 4 एम्पियर. वी हैव टू फाइंड द चेंज इन बैक EMF फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड. तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, चेंज इन बैक EMF. तो दो कंडीशन के लिए हम बैक EMF फाइंड आउट करेंगे. पहले हम फाइंड आउट करेंगे फॉर दी फुल लोड. सो रेटेड वोल्टेज हमें पहले दिए हुए हैं 230 वोल्ट. अब व्हेन द मोटर इज इन फुल लोड पे आर्मेचर करंट क्या दिया हुआ है 30 एम्पियर. ओके, नाउ सर्किट आर्मेचर रेजिस्टेंस भी दे दिया है दैट इज 0.6. ओके, सो आर्मेचर रेजिस्टेंस वही रहेगा यहाँ. सो नाउ बैक EMF क्या होगा, यहाँ EB1 इसको दे देते हैं नाम, दैट इज अ फुल लोड बैक EMF. सो V माइनस IA1 RA. सो वोल्टेज हमारे पास है, आर्मेचर करंट हमारे पास है एंड RA हमारे पास है. सो फ्रॉम दैट आई कैन फाइंड 212 एम्पियर. ओके, सॉरी 212 वोल्ट बैक EMF. नाउ सेकंड कंडीशन है व्हेन मोटर इज इन नो लोड कंडीशन. तो नो लोड पे करंट कितना, आर्मेचर करंट कितना है दैट इज अ 4 एम्पियर. तो 4 एम्पियर. सो EB2, अब नो लोड बैक EMF क्या है, EB2 V माइनस IA2 इंटू RA2. अब आर्मेचर करंट इसके लिए 4 एम्पियर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा दैट इज 0.6. सो फाइनली EB2 मुझे मिल जाएगा 227.6 वोल्ट. ओके, सो दिस इज द बैक EMF व्हेन इन फुल लोड कंडीशन एंड दिस इज द बैक EMF व्हेन नो लोड इज देयर. ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. सो चेंज इन द बैक EMF फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड. सो फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, सो नो लोड माइनस फुल लोड, so that will give the difference of back EMF. So that is 15.6 volt. Okay, so this is your answer. Okay, then another example. Okay, so it's a given that for 40 volt shunt motor दिया हुआ है, supply voltage दे दिए है, मोटर है that is shunt motor, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे दिया है 0.8 ओम, फील्ड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन 200 ओम. डिटरमाइन, आपको फाइंड आउट क्या करना है, बैक EMF व्हेन गिविंग एन आउटपुट
ऑफ 7.46 किलोवाट। तो पावर दिया हुआ है आउटपुट पावर दैट इज 7.46 किलोवाट एट द एफिशिएंसी ऑफ 85%। एफिशिएंसी भी दिया हुआ है एंड आउटपुट पावर दिया है। सो आउटपुट पावर 7.46 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 7460 वाट हो जाएगा। एफिशिएंटी 85%। वोल्टेज दे दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, इनपुट पावर पहले फाइंड आउट करेंगे। इनपुट पावर इसलिए बिकॉज इनपुट करंट वी रिक्वायर्ड, ओके, लोड करंट वी रिक्वायर्ड, लाइन करंट वी रिक्वायर्ड। ओके सो इनपुट पावर क्या होगा, तो एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। सो फ्रॉम दैट इनपुट इक्वल टू आउटपुट बाय एफिशिएंसी वी कैन राइट। सो आउटपुट हमारे पास है 74460 एंड एफिशिएंसी हमारे पास है, तो मुझे इनपुट पावर मिल गया दैट इज 8776.5 वाट इनपुट पावर। ओके सो अब इनपुट पावर मेरे पास है, इनपुट सप्लाई मेरे पास है, सो आई कैन फाइंड द इनपुट करंट बिकॉज P इक्वल टू वी आई, सो आई इक्वल टू P बाई V, तो इनपुट पावर बाई इनपुट वोल्टेज, सो इनपुट पावर 8776.5 अपॉन 440, तो मुझे मिल गया ये लाइन करंट। ओके अब मुझे फाइंड आउट बैक ईएमएफ करना है। ओके सो बैक ईएमएफ के इक्वेशन V माइनस आई आ रहे हैं। अब आई फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले लाइन करंट तो मुझे मिल गया, अब मुझे शंट करंट चाहिए बिकॉज आर्मेचर करंट इज नथिंग बट IL माइनस ISH बिकॉज शंट मोटर इज दैर। तो ISH आई हैव V अपॉन RSH। तो वोल्टेज मेरे पास है, शंट रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, तो आई कैन फाइंड दी ISH दैट इज 2.2 एम्पियर। Okay so from that I can from this equation IA equal to IL minus IH, I can find the IA that is 17.75 एम्पियर। सो मेरे पास वोल्टेज भी है, आर्मेचर करंट भी है, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी है। नाउ EB इक्वल टू नाउ 425.82 वोल्ट दैट इज अ बैक EMF। ओके सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विथ दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। इस टाइप के एग्जाम्पल्स एग्जाम में आ सकते हैं। ओके देन वी हैव गॉन थ्रू द स्पीड कंट्रोल of DC motor. Okay so I think now you have clear with this. Okay so here I just ended this session. Thank you very much.